Hi everyone, welcome back to my channel Learning Express. So today we are going to discuss about basicity of acid and indicators. So let's start the video with the first topic, basicity of acid. So basicity of acid क्या होता है? So acid, for example we have one molecule of acid. तो one molecule of acid कितने H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर सकता है एक एक्वस सॉल्यूशन में, उसे हम कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड. So the basicity of acid is the number of H positive ions that can be produced by one molecule of acid in aqueous solution. For example, HCl. HCl can give only one H positive ion. That's why it is called monobasic. Mono means one. Second example is H2SO4. H2SO4 can give only two H positive ions. So it is called dibasic in nature. Then we have H2CO3, carbonic acid. It can produce two H positive ions, so it is also called dibasic. Then we have HNO3. It can give only one H positive ion, so it is called monobasic. Then we have H2SO3, which is called sulfurous acid. It can produce two H positive ion, and it is called dibasic. And at last we have H3PO4, means phosphoric acid, and it can produce 3 H positive ions. That's why phosphoric acid is tribasic. So this was about basicity of acid. I hope आपको समझ में आया होगा कि basicity of acid किसे कहते हैं. Then we have two important questions related to basicity. First is why basicity of CH3COOH is 1. So CH3COOH का basicity 1 क्यों होता है? तो इसका सीक्रेट है इसके स्ट्रक्चर में. As you can see, we have two carbon atoms. This carbon atom is attached to 3 hydrogen atoms, and this one is attached to 2 oxygen, and this oxygen is attached to 1 hydrogen. तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, और पूरे स्ट्रक्चर में कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है. तो जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होते हैं उतने ही हाइड्रोजन्स आयनाइज हो सकते हैं और उतने ही H पॉजिटिव आयंस हमें मिलेंगे, जो डिसाइड करते हैं बेसिसिटी. सो इन एसिटिक एसिड देयर इज ओनली वन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन. सो ओनली वन हाइड्रोजन आयन रिलीजेस, तो इसलिए सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा. हेंस द बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज 1. दैट्स वाई एसिटिक एसिड की बेसिसिटी 1 है, क्योंकि सिर्फ वन हाइड्रोजन अटैच है ऑक्सीजन से. सेकेंड क्वेश्चन इज वाई बेसिसिटी ऑफ H3PO3 यानी फॉस्फोरस एसिड इज 2. तो फॉस्फोरस एसिड का बेसिसिटी 2 क्यों होता है? तो इसका सीक्रेट भी इसके स्ट्रक्चर में है. एज यू कैन सी, दिस फॉस्फोरस इज अटैच टू 1 hydrogen and 3 oxygen atoms, and these 2 oxygens are attached to 1 hydrogen. So जैसा हम देख सकते हैं ये दोनों हाइड्रोजन सिर्फ ये दोनों हाइड्रोजन ही हैं जो ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं. तो सिर्फ ये दोनों हाइड्रोजन ही आयोनाइज होंगे और हमें 2 H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे. दैट्स वाई फॉस्फोरस एसिड का बेसिसिटी होता है 2. In phosphorus acid, there are only 2 ionizable hydrogens which are attached to oxygen. So only 2 hydrogen ion releases, and the basicity of phosphorus acid is 2. Now the next topic is indicators. What are indicators? So indicators क्या होते हैं? Indicators are those substances which tell us whether a substance is acidic or basic by changing color. तो indicators वो substances होते हैं जो हमें ये बताते हैं कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है नेचर में, और ये हमें कैसे बताते हैं? अपने कलर को चेंज करके, बाय चेंजिंग कलर. फॉर एग्जांपल लिटमस पेपर, अनियन एंड फिनोल्फथलीन एक्सेट्रा. अब इंडिकेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो मेनली देयर आर 3 टाइप्स. फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड इज सिंथेटिक एंड थर्ड इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. तो अब हम डिस्कस करेंगे इन तीनों इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल में. So the first is natural indicators. So the indicators which are obtained from natural sources, वो indicators जो हमें natural sources से मिलते हैं, those are called natural indicators. For example turmeric यानी हल्दी, litmus paper, चाइना रोज
चाइना रोज हिबिस्कस फ्लावर की फैमिली से है, उसी स्पीशीज से है, एटसेट्रा. सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स. अब हम समझते हैं कि ये इंडिकेटर्स एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने से कैसे रिएक्ट करते हैं. सो द फर्स्ट इज टर्मरिक यानी हल्दी. सो हल्दी का कलर होता है येलो. सो व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एसिड इट रिटेन इट्स कलर, वो येलो ही रहता है. बट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद बेस इट चेंजेस इनटू रेड, वो रेड कलर में चेंज हो जाता है. देन वी हैव लिटमस पेपर. अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है. और अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डिप करें तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है. देन थर्ड इज चाइना रोज यानी हिबिस्कस फैमिली का ही फ्लावर. सो चाइना रोज के सॉल्यूशन को यानी चाइना रोज का सॉल्यूशन अगर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर मेजेंटा में चेंज हो जाता है. चाइना रोज के सॉल्यूशन का कलर होता है रेड. सो एसिड के कांटेक्ट में आने से इट चेंजेस इनटू मेजेंटा कलर and when it comes in contact with base it changes into green color. Then we have beetroot. beetroot का कलर, beetroot के solution का कलर dark red होता है. So when it comes in contact with acid there is no change in the color, but when it comes in the base it becomes yellow in color. So in this way ये सारे indicators हमें ये बताते हैं, ये denote करते हैं by changing their color कि कोई substance acidic है या basic है. Then the second type, synthetic indicators. So the indicators which are prepared in laboratory, वो indicators जिन्हें laboratory में यानी lab में prepare किया जाता है, those are called synthetic indicators. For example, methyl orange and phenolphthalein. Now how do they react? So methyl orange is bright orange in color. When it comes in contact with acid, acid के contact में आने से ये red color में change हो जाता है और base के contact में आने से ये yellow में change हो जाता है. एंड द सेकेंड इज फिनॉल्फ्थलीन. इट इज़ कलरलेस. ये न्यूट्रल में भी कलरलेस होता है, इसका रियल कलर भी कलरलेस होता है और एसिड के कांटेक्ट में आने से भी ये कलरलेस ही रहता है, बट बेस के कांटेक्ट में आने से ये पिंक कलर का हो जाता है. सो इस तरह से ये दोनों इंडिकेटर हमें डिनोट करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक बाय चेंजिंग देयर कलर. नाउ द लास्ट टाइप इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. सो हमने अब तक जो दो टाइप्स पढ़े इंडिकेटर्स के, नेचुरल एंड सिंथेटिक, वो अपने कलर को चेंज करके ये बताते थे कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक. बट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ये उस सब्सटेंस का स्मेल चेंज कर देते हैं. इंडिकेटर्स whose smell varies depending on whether it is mixed with an acid and basic solution. So एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में जब इन्हें हम मिक्स करते हैं इन इंडिकेटर्स को तो उसका सोल्यूशन का स्मेल चेंज हो जाता है. तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो एसिडिक है या बेसिक. फॉर एग्जाम्पल अनियन, तो इसके एग्जाम्पल्स है अनियन, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल. सो अनियन क्या करता है? व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एसिड इट रिटेन्स द स्मेल, उसका स्मेल सेम रहता है. बट व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द बेस स्मेल चेंजेस, तो स्मेल चेंज हो जाता है. सेम फॉर वनीला एसेंस. व्हेन वनीला एसेंस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एसिड retains the smell, but when it comes in contact with the base its smell changes. Then clove oil भी सेम बिहेव करता है. जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये अपनी स्मेल को रिटेन करता है, इसकी स्मेल चेंज नहीं होती. बट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द बेस के कांटेक्ट में आने से इसकी स्मेल चेंज हो जाती है. सो इस तरह ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स अपनी स्मेल को चेंज करके हमें ये बताते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक. अब इंडिकेटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फर्स्ट इज वाई डज अ करी स्टेन टर्न रेड व्हेन इट इज़ वॉश्ड विद अ डिटर्जेंट. तो एक करी स्टेन यानी वेजिटेबल करी का दाग किसी कपड़े पे लग जाता है और उसे जब हम डिटर्जेंट से वॉश करते हैं तो उसका कलर रेड क्यों हो जाता है? व्हाट इज़ द रीज़न? वी नो दैट टर्मरिक इज़ नेचुरल इंडिकेटर. जैसा हमने पढ़ा था नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल में कि टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है. सो इट टर्न्स रेड और ये रेड कलर में चेंज हो जाता है व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद बेस. जैसा कि हमने पढ़ा था व्हेन टर्मरिक कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ बेस इट चेंजेस इनटू रेड. सो करी कंटेन्स टर्मरिक और हम तो जानते हैं वेजिटेबल करी में टर्मरिक भी एक इंग्रेडिएंट होता है और डिटर्जेंट का नेचर बेसिक होता है.
So when curry comes in contact with the detergent, it turns red. इसलिए जब करी जिसमें कि टर्मरिक प्रेजेंट होता है, जब वो डिटर्जेंट के कांटेक्ट में आता है जो कि बेसिक होता है, तो टर्मरिक का कलर चेंज हो जाता है रेड में. दैट्स वाई वो जो करी का स्टेन होता है उसका कलर भी रेड हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? सो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर. ये मिक्सचर होता है बहुत सारे डिफरेंट इंडिकेटर्स का, विच गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट pH वैल्यूज ऑफ द एंटायर pH स्केल, जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करके ये बताता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक. इट इज़ यूज टू ऑब्टेन एन आइडिया ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक का सब्सटेंसेस. और इससे हमें ये भी आइडिया लगता है कि कोई सब्सटेंस अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, वो वीक एसिडिक है या फिर स्ट्रांगली एसिडिक है, या फिर वीकली बेसिक है या फिर स्ट्रांगली बेसिक है. सो यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें ये भी बताता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, और उसकी स्ट्रेंथ भी. So that's it for today's video. I hope you like this video. If you do, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.